तो गाइस हमारी एग्जिट एग्जामिनेशन की सीरीज में जो अगला विषय है वो है फार्माकोग्नोसी। थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि इसमें जो बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड टर्म्स हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बट डोंट वरी, इस सीरीज के माध्यम से हम एग्जिट एग्जामिनेशन की सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बस आपको बने रहना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच मेथड आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट? ए सब्लिमेशन, बी डाइजेशन, सी HPLC या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी, सब्लिमेशन एंड डाइजेशन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन? मतलब क्या उसका नुकसान है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, बी लो कॉस्ट, सी लेस टाइम या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो डिसएडवांटेज है, इज द राइट आंसर, वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parameter affects to supercritical fluid extraction method? A pressure, B density, C temperature या D both A and C। तो जो करेक्ट आंसर है वो है both A and C, that is D ऑप्शन। प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों ही सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ एम्बेलिका ऑफिशियलिस इज डन बाय Vitali Moring test, B total phenolic content, C TLC या D all of the above। The correct answer is total phenolic content, that is option B। Next question, which constituents are present in alum sativum? A that is allen, B allyl propyl amine, D diallyl trisulfate या D all of the above। The correct answer is A, that is allen। Next question, what is biological source of Garcinia? A Garcinia alba, B Garcinia cambogia, C Garcinia officinalis या D all of the above। So इसका जो correct answer है वो है B, that is Garcinia cambogia। Next question, which parts are involved in preparation of allium sativum? A bulb of garlic, B dried peel of cloves of garlic, C powder of leaves of garlic या D all of the above। So the correct answer is B dried peel of clove of garlic। Next question, which parameters are used for evaluation of herbal drugs? निम्नलिखित में कौन से मापदंड हर्बल मेडिसिन यानी कि जो भी जड़ी बूटियां हैं उनके जांच परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जाते हैं? ए विस्कोसिटी, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी सॉल्युबिलिटी या डी ऑल ऑफ द अबव। और कॉमन सेंस की बात है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसीलिए ऑप्शन विल बी, राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इस तरह क्वेश्चन में कभी भी इवैल्यूएशंस में आए पैरामीटर तो जनरली जो भी मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स होते हैं वो सभी काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गैस क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन ए adsorption, B absorption, C differential migration या D all of the above। So the correct answer is differential migration। Next question, what is the principle of high performance thin layer chromatography? A adsorption, B partition, C absorption या D both A and B। तो जो correct answer है वो है D, that is both A and B। Next question, which drug is used for reduction of production of fat? A amla, B garcinia, C ashwagandha या D all of the above। So the correct answer is B garcinia। Moving on to the next question, what is the family of garcinia? A Guttaceae, B Apocynaceae, C Rubiaceae या D Leguminosae। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है A Guttaceae। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड? A थिम्बल, B कंडेंसर, C फिल्टर पेपर या D ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर इज ऑल द थ्री, दैट इज थिम्बल, कंडेंसर एंड फिल्टर पेपर, सभी उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Microwave assisted extraction methods are A. Energy vector, B. Electromagnetic energy, C. Both A and B, या D. Preparation of antibody. Obviously the correct answer will be C, that is energy motor and electromagnetic therapy both, hence the correct answer will be option C, both A and B. Next question, which method is used for evaluation of alkaloid? A. Wagner's method, B. Balget test, C. Legal test, या D. Keller-Kiliani test. The correct answer is Wagner's method. Moving on to the next question. Evaluation of drugs include microscopy, macroscopy, chemical reaction and all. इसमें भी कॉमन सेंस की बात है कि डेफिनेटली सभी जो इसके पैरामीटर्स हैं काउंट होंगे, तो ऑप्शन डी ऑल विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स इंक्लूड mycotoxin, endotoxin, both A and B, या D, none. So the correct answer is both A and B, that is mycotoxins and endotoxins both. Next question, full form of ADI is acceptable diet intake, acceptable daily intake, acceptable daily interaction या acceptable diet interaction. So इसका जो correct answer है वो है B, acceptable daily intake. MDI means mean daily interaction, mean daily intake, mean diet intake या D, mean diet interaction. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगेन बी, दैट इज मीन डेली इनटेक. क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज नेक्स्ट. कंपोनेंट्स ऑफ GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इंक्लूड्स A. ट्रेनिंग स्टाफ, B. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, C. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल या D, ऑल. सो इसका जो सही आंसर है वो है D, ऑल. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली भी ना ही सिर्फ हर्बल इंडस्ट्री, आयुर्वेदा इंडस्ट्री में नहीं बल्कि एलोपैथी की दुनिया में भी कंसिस्टेंटली एक फॉलो करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्रैक्टिस है. इसके कई पार्ट्स होते हैं. इसी पर हमारा है अगला सवाल, दैट इज GMP के पार्ट 1 में क्या क्या सम्मिलित होता है. ऑप्शन नंबर A, जनरल रिक्वायरमेंट्स, B. वेयर हाउसिंग एरिया, C. पर्सनल या D, ऑल. ऑब्वियसली द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज D, दैट इज ऑल. क्वारंटाइन इंक्लूड्स, कोविड टाइम में हम सभी ने क्वारंटाइन एक शब्द बहुत सुना है. इसको आप कॉमन सेंस के जरिए इस अप्लाई करके इस आंसर का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हैं. तो ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, C. स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल या D. डेस्टिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल. इसका सही आंसर है स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Part 2 GMP includes A. Option A, standard operating procedures, B. distribution, C. medical services या D, none. तो जो इसका सही आंसर है वो है A, standard operating procedures. There should be dash square feet area for quality control. क्वालिटी कंट्रोल सिलेक्शन यानी कि जब किया जाता है तो उस एरिया का स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना डायमेंशन होना चाहिए स्क्वायर फीट में. A 160, B 150, C 190 या D 200. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, दैट इज 150 स्क्वायर फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स कम्स अंडर GMP के पार्ट 1, पार्ट 2, C बोथ, दैट इज A एंड B या D, नन. तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट 2. सो गाइस, फार्माकोग्नोसी की ये थे हमारे कुछ पहले क्वेश्चंस. इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज साथ अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आप जरूर प्लेलिस्ट पर और चैनल पर बने रहें ताकि सभी एग्जैक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को आप देख सकें. ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आप मिलते रहेगी जब जब क्वेश्चन सीरीज आएगी. और वीडियो फ्रूटफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना ना मिलते हैं अगली सीरीज में. थैंक यू.